over here, over Telangana. And what was my thoughts over the COVID here is, moreover, the politicians here operates the media, the news media, like all the test cases or all the operations were holded by the governments only, and the reports sent by the government and the reports from the newspapers are so much of delay in it. And daily I used to see my local news. I can say that nowadays the media is going as in pink media. I can say a small as a percentage of 70 to 75 the medias are pink medias, I think so. So you see just 1 hour, 2 hour every day? That's what you mean? No sir, for 45 minutes to 1 hour he will spell 7 local newspapers. Okay. 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 All the headlines, all Yeah, the yeah, sure. headlines over Sejal, the are you local. there? How much news do you listen to every day? Sir, I really don't आवाज ब्रेक हो रहा है सेजल. listen to news Maybe. by myself. सेजल थोड़ा सा अच्छे से हॉटस्पॉट पे खर्च करो. My father used to नहीं, voice break हो रहा है सेजल. say, Maybe you can exit and enter. Okay. Kartikeya, what's your take? okay, How much news you see? let me join it. Yeah. Yes, Kartikeya. सर अभी ना नेटवर्क सही नहीं है, हॉटस्पॉट पे. Kartikeya, are you there? Yeah. Hi. Yeah. Yes, please. What's your media exposure every day or on average? So I think थोड़े टाइम पहले भी अपन लोगों ने कुछ इस चीज से रिलेटेड बात करी थी and you asked the same question. So as far as news channels are concerned, so it's a very bad thing, but I've recently started watching news channels especially so because most of them आज की डेट में are propagandas only. So my exposure is quite a bit, especially in the morning as soon as I get up, get ready, breakfast करते करते, but I don't usually follow a particular channel. I usually flip channels, so you can probably analyze the mota mati thing ki what is going on. But yeah, I would still say ki for the rest of the day I depend a lot on the newspaper. Whenever I'm working या college में होता हूँ, time मिलता है तो newspaper उठा करके मैं बहुत पढ़ लेता हूँ. So the time I would say I pretty much have 1.5 hour of media exposure for the whole day. Okay. Muskan, what's your media exposure like on a daily basis? Yeah, and am I audible, sir? Yes. Yeah. Yeah, I don't read newspapers or TV channels and all, news channels. I usually rely on apps. There is a Times of India app or CNBC app. So I basically do watch them over phone. And yeah, I basically stay consistent to the financial news only. But in this corona, I realized one thing, that media is really impact our life and mind. My dad used to see in the evening for 1 or 2 hours. They are showing every day that itne cases aa gaye, itni death ho gayi. So it create a lot of fear in the mind of people. But I live in Delhi, but when you go out to the market, the situation is normal. But when you see media, the situation is like not normal. So I think media do not affect life in a good way, especially in these times. It create a lot of stress and fear in the mind of people. Okay. Saurav, what's your take? How much news you get exposed every day? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज मेरा नया लुक है. Hero Hirala. So I got some inspiration from media only. So that media was YouTube. So okay, coming back to sponsor so Saurav, sponsor कौन है आपके इसलिए Outlook का? Normally होते हैं लोगों के. पर्सनल है सर, ये सब चीज पे खुद ही स्पॉन्सर करना पड़ता है. फ्री है. किसी और से मांगने जाएंगे तो थप्पड़ मार के भगा देगा. ओके,
तो मीडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इंडिया में. पर्सनली अगर मैं अपनी बात बताऊं तो आई यूजुअली डू नॉट वॉच टीवी न्यूज. अगर कभी देखना भी है तो आज तक देखता हूं मैं, या CNN देखता हूं. और पर बहुत ज्यादा नहीं देखता हूं. आई रिलाई ऑन एप्स एंड आई रिलाई ऑन न्यूज़पेपर. मैं सुबह डेली इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता हूँ, मोस्टली स्टार्टअप न्यूज. आई डोंट लाइक रीडिंग पॉलिटिक्स. आई एम अ स्पोर्ट्स एंड स्टार्टअप गाय. तो मैं स्पोर्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ, स्पेशली क्रिकेट. और स्टार्टअप न्यूज इकोनॉमिक टाइम्स में आता है, वो पढ़ता हूँ. और योर स्टोरी और ये सब ऐप मीडिया में पढ़ता हूँ. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट की इन्फ्लुएंस की बात है, तो मैं उसमें बस इतना बोलना चाहूंगा कि आज का जो यूथ है वो इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं है. आई डोंट थिंक दे रीड टू मच ऑफ न्यूज़पेपर्स व्हिच वी मे कॉल ऑथेंटिक न्यूज. मतलब प्रिंट मीडिया बहुत ज्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं. दे आर मोस्टली glued to television or YouTube or some video apps. And वहां पे since it is a business, so वहां पे आपको fake या थोड़ा ओवर रेटेड नमक मिर्च लगा के भी न्यूज दिया जाएगा, बिकॉज TRP का गेम होता है और ऐप डाउनलोड्स होते हैं और ये होते हैं वो होते हैं. तो उनको यूजर्स चाहिए, तो इसीलिए बहुत सारा कुक्ड अप न्यूज होता है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि क्योंकि इंडिया ऑथेंटिक न्यूज नहीं पढ़ती है, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर मतलब इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी न्यूज से इंफॉर्मेशन गैदर हो रहा है दैट हैज टू बी ऑथेंटिक. अदरवाइज बहुत ज्यादा रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो रहा है यूथ पे. बहुत लोग को बहुत चीजें नहीं पता है असलियत क्या है, और उन्हें लगता है कि जो नॉन असलियत है वही सच है, बिकॉज वो एक बिजनेस देख रहे हैं. आज तक या ये सब इट इज अ बिजनेस एंड नॉट अ न्यूज. पता नहीं मैंने अच्छे से अभी आते हैं थोड़ा सा डिटेल. अभिषेक जानता न्यूज कितना देखते हो? तो दिन भर में 1.5-2 घंटे न्यूज देखते हैं. और मेरे को इसलिए देखते हैं कि पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं. ठीक है, तो मेरे को अच्छा लगता है, खास करके 1-2 चैनल जैसे हो गया है, इंडिया टीवी हो गया है. रजत शर्मा को जो 9 से 10 आता है वो मतलब वो 5 दिन फिक्स से उनको फॉलो करते हैं. और शामों में जो डिबेट होता है कभी कभी देख लेते हैं. मेरे को अच्छा लगता है. कुछ हटा दिया जाए तो जैसे NDTV हो गया, उसके बाद बरखा दत्त गैंग का जो भी है मतलब वो लोग को हटा दिया जाए तो अच्छा है. मेरे को अच्छा लगता है. ओके, और कोई बचा क्या? एनीवन? अतुल सर, हाउ मच टाइम यू स्पेंड एवरी डे? तो मैं सुबह उठने से लेकर रात को सोने समय तक न्यूज के साथ ही टाइम बिताता हूँ. ओके. और इसके पीछे बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट ये है कि बचपन से आदत थी न्यूज़ पढ़ने की. मुझे याद है कि जब छोटा बच्चा था तो न्यूज़पेपर आता था नानी के यहाँ, नाना के यहाँ या पापा के यहाँ, न्यूज़पेपर जो भी है. तो पेपर के लिए लूट होती है कि पहले कौन पढ़ेगा. तो नॉर्मली मैं पेपर पढ़ने वाला बचपन से आदमी हूँ. जो भी पुरानी जो पेपर है वो सारे बंद भी हो गए. सर्च लाइट हुआ करता था, जो भी पेपर्स थी मैं पेपर पढ़ता था. उसका मैं एक अपसाइड बताना चाहता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ने की जो मेरी आदत थी, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स और बहुत ज्यादा पढ़ने की जो आदत है, तो उसका फायदा क्या हुआ कि कैट का जब मैं एग्जाम देने गया था, तो मैं एग्जाम जो IIM के कैट के लिए, तो मैं एग्जाम का डेट टाइम भूल गया था. अचानक मेरे दोस्त ने याद तुम्हारा भी जाकर एग्जाम है, तो मैं उठ के मतलब कि जल्दी भागा, टाइम पे पहुंचा. बट वहां जाकर जब मैंने जो पेपर्स दिया तो कह ये तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तो बड़े बहुत, जो भी आज तक मैंने इतना आज तक किताबें पढ़ी, मैगजीन पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा, बहुत वाइड वैरायटी का पढ़ा, हर तरह का पढ़ता था. तो उसका मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरे लिए कैटवॉक रहा बहुत, जो कि बहुत लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत दिक्कत होती है. मैंने नोटिस किया अपने सर्कल्स में, स्पेशली बिहारी सर्कल में ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि लोग इंग्लिश पढ़ने की आदत नहीं है. बचपन से इंग्लिश मीडियम से बहुत लोग नहीं पढ़े हैं, गाँव से आए हैं. अभिषेक जनता से कि अगर आप गाँव के स्कूल में पढ़े हो या उस बैकग्राउंड में रहे हो,
कि आपको इंग्लिश मीडियम वालों के साथ उठना बैठना या बातचीत नहीं होती है, टीवी नहीं देखते हो, तो नहीं। तो बचपन से ही टीवी भी देखता हूँ, न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहता हूँ, तो उससे क्या है कि ब्रेन पे थोड़ा इन्फ्लुएंस आता है कि आपको पॉलिटिक्स, इकोनॉमी सबकी थोड़ी समझ अच्छी हो जाती है। और हाँ, जैसे अभिषेक जनता को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे भी पॉलिटिक्स में बहुत ही इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वह पॉलिटिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप। पॉलिटिक्स के पास जो पावर होता है, जो बजट होता है, वो किसी के पास नहीं होता। आज इंडिया का क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है फ्यूचर, वो हमारे जो नेता हैं उनके डिसीजंस पे, उनके कितने इन्फॉर्म्ड है, कितने सही है, उस पर डिपेंड करता है। यूएस में भी अच्छा हो बुरा हो, यहाँ के जो पॉलिटिशियन, सबसे ज्यादा बजट उनके पास होता है, सबसे ज्यादा पावर उनके पास होता है। तो आप अगर पॉलिटिक्स को इग्नोर कर रहे हैं तो आप बेसिकली सोसाइटी के सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर है या सबसे बड़े जो डिसीजन मेकर्स, इन्फ्लुएंसर्स, उसको इग्नोर कर रहे हैं। पॉलिटिक्स को लोग गलत, बैड पॉलिटिक्स से, करप्ट पॉलिटिक्स से कंफ्यूज कर देते हैं। मेरा कहना है कि अच्छी पॉलिटिक्स को इनकरेज करना चाहिए। अच्छे लोग पॉलिटिक्स में जाएंगे तो पॉलिटिक्स सुधरेगा। तो दैट इज माय होल पॉइंट कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, खूब सारा पढ़ते रहिए, तो आपको एग्जाम्स में भी आसान होगा, इंटरव्यूज में भी आसान होगा और बिजनेस में भी आसान होगा। आप वन ऑफ द टॉप मोस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट जो है माइकल मॉरिस, उन लोगों का मैंने बैकग्राउंड देखा तो बहुत सारे लोग वो मीडिया से आए थे। तो लोग ये मीडिया वाले लोग है, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं थे, ये बहुत सारे बड़े बड़े वीसी, दे हैपन टू बी फ्रॉम द मीडिया बैकग्राउंड। तो न्यूज़पेपर और मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ठीक है, तो आई थिंक सौरभ ने एक पॉइंट बोला एंड आई हैव द सेम पॉइंट कि इफ न्यूज़ इज अ बिजनेस, हाउ कैन वी ट्रस्ट what they are presenting fully? I mean, so it's very much like कि उनको ad चलाना है, ad दिखाना है लोगों को, उनको अपना TRP बढ़ाना है, तो वो वही न्यूज़ डालेंगे जो people want to read. Yes, Saurabh want to answer something? Yes, sir. मेरे को आंसर नहीं कर रहा एक्चुअली। इससे बड़ा क्वेश्चन ये है विशाल, आपने पूछा कि कैसे पता चलेगा कि ये न्यूज़ ऑथेंटिक है। पॉइंट है कि 99% को पता ही नहीं है कि ये नॉन ऑथेंटिक है। दे आर बिलीविंग व्हाट दे आर सेइंग। सो दिस इज अ बिगर क्वेश्चन टू आंसर कि मतलब दिस कैन नॉट बी आंसर्ड। उन्हें पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। मैं इस पे आंसर करूं? हाँ बताइए सर। तो मेरा ये करना है सौरभ के पॉइंट पे, क्या ये बात सही है कि बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली आजकल आपके व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, बहुत लोग उसी को सच मान लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए एक रीजन है कि मैं एक पॉलिसी बनाता हूँ, जितने भी ग्रुप्स मैं मैनेज करता हूँ, कि सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कि न्यूज का जो सोर्स है ना वो क्या है। आप जो भी आप न्यूज पढ़ रहे हो तो उस हर सोर्स के बायसेस होते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आप एनडीटीवी देख रहे हो, तो आई नो कि एनडीटीवी के जो फाउंडर्स है उनका पॉलिटिकल एफिनिटी क्या है, उनका एजेंडा क्या है, उनकी फंडिंग क्या है, तो उससे आपको पता चल जाएगा उनके बायसेस क्या हो। आप राजदीप सर ये सॉरी इसका अर्नब गोस्वामी का न्यूज आप सुनोगे तो अर्नब गोस्वामी के अलग पॉलिटिकल एजेंडा है, अलग स्पॉन्सर्स है। तो आपको सोर्स पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यूज आप पढ़ो तो सोर्स के थ्रू आपके सोर्स के बायसेस का भी आइडिया लग जाएगा। देन यू हैव द जजमेंट कि आप सारे सोर्सेज से इनपुट लो, बट अल्टीमेटली ये जो डिसीजन मेकिंग और इंटरप्रिटेशन है वो हमारा और आपका है। तो हम लोग सोर्स को ब्लेम नहीं, हम मीडिया चैनल्स को या न्यूज़पेपर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। हमने अपना डाइवर्सिफाइड सोर्स रखा है कि नहीं। इफ आई वांट टू हैव अ लेफ्ट लीनिंग व्यू, जैसे यूएस में, तो मैं न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ूंगा। इफ आई वांट टू हैव राइट लीनिंग व्यू तो मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ूंगा। और मैं दोनों जानना चाहता हूँ मैं दोनों पढ़ूंगा, या बीच का मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे नेशनल पब्लिक रेडियो आता है तो उसको सुनूंगा। तो आपको मल्टीपल सोर्सेज से आपको इनपुट लेना है एंड देन आपके डिस्कशन पे डिपेंड करता है कि सही क्या है, गलत क्या है। That's all. ठीक है, ये तो आपने बोल दिया कि पूरा पोस्टमार्टम कर लो न्यूज का। सर आप तो बहुत इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है। नहीं, आपने तो ये भी बोला ना कि सुबह से शाम तक आप न्यूज देखते हैं, कितने लोग के पास टाइम है? इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट 99% जनता जिनको तो पता ही नहीं है। हाँ, तो उसमें मैं बोलता हूँ कि मैं जो नॉट एजुकेटेड एट ऑल। हाँ नहीं सौरभ, तो मैं जैसे कि जहाँ भी रहता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, दे आर दोज ऑडियंस जो टेली ब्रांड से सामान ले लेते हैं। आप समझ रहे हैं, उनको वो भी सच लगता है कि संधि सुधी तेल और ये और वो पता नहीं क्या क्या था, वो सब भी उनको सच लगता है। We all know what tele brands sell and how they sell. हाँ, उसी ऑडियंस पे आता हूँ। 5 मिनट में 10 सेकंड्स में बुक करिए, एक और फ्री पाइए, ये सब तो
तुरंत पेड अप, तुरंत हाँ ये तो फालतू चीज है मतलब, और और लोग वो खरीद हर रहे समय यही चलेगा कि अगले 5 हाँ। मिनट में दिन भर कोई भी आप टीवी खोल लीजिए या न्यूज़पेपर खोलिए, तो उसमें सबसे ज्यादा ऐड किसका आएगा? दवा कंपनीज का आएगा, ये इस तरह के जो प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, टेली मार्केटिंग टाइप की चीजों का आएगा। तो गांव में थोड़ा प्रॉब्लम कम है। गांव में भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अपना हिंदी अखबार जो या तेलुगु अखबार, तमिल अखबार जो पढ़ते हैं ना, वो थोड़े ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है। प्रॉब्लम ज्यादा है शहरों में। शहर के लोग थोड़े डिग्री में पढ़े लिखे होते हैं, बट नॉर्मली उनके पास थोड़े गंवार, मतलब कि थोड़े से बेवकूफ होते हैं। शहर के लोग जो है ना, वो जो मेन स्ट्रीम टीवी या पब्लिकेशंस, मैगजीन्स, उस पर चले जाते हैं। गांव के लोगों को थोड़ा सा आपस का लोकल उनका एक्सपीरियंस है। गांव के जो बूढ़े जो मुखिया जी या बाबा लोग होते हैं ना, उनके पास काफी प्रैक्टिकल विजडम है दुनिया का, तो उनको पता है कि क्या ट्रस्ट करना है, क्या नहीं करना है, और वो जजमेंट और डिस्कशन ज्यादा यूज कर पाते हैं। शहर के लोग थोड़े इस मामले में, मैं 100% सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, बट शहर के लोग हैं, स्पेशली यंग जनरेशन, बहुत ही मिस इन्फॉर्म्ड, इल इन्फॉर्म्ड होता है, क्योंकि उनके पास वो डिस्क्रिप्शन और विजमेंट आ नहीं पाया है, क्योंकि उन्होंने जो स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, तो उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई और उनका जो ब्रेन वॉश हुआ, उसी को वो सच मान लेते हैं। लेकिन अगर किसी को सीरियसली जानना है, अगर सीरियसली इंटरेस्ट है, तो मैं बोलता हूँ google.com पे आप देख लो, मल्टीपल वर्जन्स न्यूज देख लो, विकिपीडिया पे जाके सोर्स देख लो, बहुत सारे सोर्सेज है। यूट्यूब पे बहुत सारे गलत वीडियो भी, अच्छा वीडियो भी। तो आपको देखना है कि कौन सा कंटेंट आपको यूट्यूब भी ज्यादा दिखा है, कौन सा कंटेंट गूगल न्यूज भी आपको ज्यादा दिखा है। वो ब्रांडिंग आपको अपना खुद का चैनल हर इंसान को बनाना पड़ेगा, कि हम किस तरह के न्यूज को ज्यादा सुनना चाहते हैं, किस तरह के व्यूज को सुनना चाहते हैं। और बेटर ये हुआ कि आप डाइवर्सिफाइड सुनो। बट हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप पे इंटरेस्ट है मान लीजिए सौरभ जी का, तो एंटरप्रेन्योरशिप वाले चैनल को, सीएनबीसी को ज्यादा देखेंगे तो बहुत अच्छा इनका काम हो जाएगा। इनको जरूरत ही नहीं है कि ये जो एनडीटीवी और क्या कहते हैं पब्लिक टीवी में बैठकर पॉलिटिकल सुनने की जरूरत है। सीधा आप सीएनबीसी देखो, ब्लूमबर्ग देखो, और आपका काम हो जाएगा। ओके, तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन is actually like this कि अब मैं let's say a child, small child, teenage, let's say sitting with his parents, जो न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ में दिखाया है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, तो somehow that teenager is getting affected by that news कि हाँ इतना लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि if parents are believing in that news, or like the whole family is sort of seeing, maybe the child is not able to question that point of time. अच्छा अभिषेक कौन सा? यस अभिषेक। यस, हम एक चीज तो बोलना चाहेंगे कि न्यूज का मतलब कभी कभी बहुत बड़ा ये बेनिफिट भी होता है। जैसे अभी जो बिहार में चल रहा था हॉस्पिटल में लेकर, तो ये चीज सामने नहीं आ पा रहा था, और शायद न्यूज वाला इंडिया टीवी बोलिए या आज तक का क्या नाम है उसका, श्वेता करके, वो एकदम मतलब आकर इतना ज्यादा गवर्नमेंट को मानिए तो तंग कर दी कि अल्टीमेटली उस सिस्टम को सुधारना पड़ा, और आज का इस सिचुएशन अच्छा है। तो वो बहुत बार बहुत ज्यादा बेनिफिट भी होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हर न्यूज खराब ही होता है। नहीं, ये बात सही है, हर न्यूज़ खराब नहीं होता है, दैट इज ऑलवेज देयर। अब डिपेंड करता है कि आप देखते किसको हैं। रवीश कुमार को देखते हैं कि आज तक, या इंडिया टीवी और रिपब्लिक को देखते हैं? नहीं, तो ये जो तुमने बोला ना कि पर्सन ए को देखते हैं, पर्सन बी को देखते हैं, पर्सन सी को देखते हैं, सबको देखने वाले लोग हैं, सीधा सा बात है, तभी वो न्यूज़ चल रहा है, अदरवाइज वो बंद हो चुका होता है। सबका अपना अपना ऑडियंस है। नहीं, आप जो बोल रहे हैं बंद हो चुका होता है, बंद इसलिए नहीं हो पाता है कि उसका फंडिंग कहीं और से आता है। ये भी एक रीजन है बंद नहीं होने का। तो तुम ये बोल रहे हो कि एक्सटर्नल फंडिंग है, जैसे ऑलमोस्ट लाइक स्टार्टअप लॉस में है, सब कुछ है, बट नहीं विशाल मीडिया के फंडिंग वो बोल रहे हैं पॉलिटिकल फंडिंग। हाँ नहीं ठीक है, मतलब स्टार्टअप जैसा कि फंडिंग हो रहा है, लॉस में जाओ कोई बात नहीं, पीआर करते रहो मेरा। नहीं स्टार्टअप जैसा नहीं, स्टार्टअप फंडिंग में पीआर थोड़ी होता है। नहीं ये हम पीआर नहीं होता है कि एज फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल 6 साल
करीब बीजेपी गवर्नमेंट का एनडीए का होने जा रहा, आप सिंगल एक भी मेरिट रवीश कुमार को बतला दीजिए कि मतलब सिंगल भी कि जो मोदी गवर्नमेंट को अच्छा बोलेगा। क्या वो 6 साल में एक भी काम ऐसा अच्छा नहीं किया है? लेकिन वो एक भी नहीं बोल सकता है। तो इतना ज्यादा निगेटिविटी फैलाकर कोई न्यूज दिखला रहा है, तो जाहिर सी बात है कि फंड करने वाला कोई और है। निगेटिविटी नहीं, डेमोक्रेसी, इसको मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है एक तरह से आप देखें तो। अगर कोई मीडिया जो है गवर्नमेंट को एज ए, अगर वो जो अपोजिशन वो काम नहीं कर पा रहा है तो मीडिया वो काम करता है, बिकॉज नहीं डेमोक्रेसी भाई, में बहुत एक सेकंड, अपोजिशन डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब ये तो नहीं होता है कि हमको जो मन आए सो बोल दिए हैं, देश के प्रधानमंत्री को जो मन आए सो बोल दिए। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है। कोई भी आदमी एक उस पद पे है तो आप डेमोक्रेसी में आकर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। जेएनयू में वो क्या हो रहा था डेमोक्रेसी के नाम पे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसको क्या हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं लोग क्या? और उसी को एनडीटीवी सपोर्ट कर रहा था कन्हैया कुमार को। वो कौन सा डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी का भी एक लिमिटेशन होता है। डेमोक्रेसी का ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है, यही तो एग्जैक्टली है कि आप प्रधानमंत्री को भी बोल सकते हैं, आप मुख्यमंत्री को भी बोल सकते हैं। चाइना में वही चीज नहीं है, और यहाँ ना फिर नॉर्थ कोरिया में ये चीज है कि आप अगर उसके किंग को कुछ बोलते हैं, फिर चाइना प्रेसिडेंट को कुछ बोलते हैं, तो आपको वहां पे बहुत सारी चीजें कर दी जाती है। बट वही इंडिया में आपको एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री आपको ये सारी हक मिलता है कि आप जिसको चाहे वो चीज बोल सकते हो बिना किसी रोक टोक के। और यही चीज हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन से लेके हर एक चीज को बहुत ज्यादा सुपीरियर बनाता है। नहीं भाई, मेरे ख्याल से इसको सुपीरियर नहीं बोल सकते हैं कि आप देश के खिलाफ या आप देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल सकते हैं। बोलने का भी एक लिमिटेशन होता है, क्योंकि वो जो भी गवर्नमेंट है, या मनमोहन सिंह हो या नरेंद्र मोदी हो, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। बाद में या वो बीजेपी के या कांग्रेस के लीडर हो, लेकिन वो सबसे पहले वो देश के प्रधानमंत्री उस पद पे हैं। उस पद को देखते हुए भी बोलना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब मेरे ख्याल से ये नहीं होता है कि आप देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को आप गाली देते फिरिएगा। राष्ट्रपति एक बहुत मतलब सबसे बड़ा उपपद होता है, उसका सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा अभिषेक के इस पॉइंट, मतलब इसके पहले जो बताए कि सोर्सेज ऑफ फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मीडिया का सोर्सेज ऑफ फंडिंग क्या है। तो दूरदर्शन है, भारत सरकार का है, हमेशा ऑब्वियसली गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो न्यूज है वही दिखाएगा, या ऑल इंडिया रेडियो अच्छा दिखाएगा। एनडीटीवी का सोर्सेज ऑफ फंडिंग बाहर में है, इंडिया के बाहर की कंपनीज हैं जो करती है, चाइना वालों का भी थोड़ा उसमें इन्वॉल्वमेंट है। ज्यादातर जो चैनल्स है ना, उसका कोई ना कोई सोर्सेज ऑफ फंडिंग है। जैसे कि अब एक चैनल है क्या आज तक, रोहित शर्मा वाला, तो उनका कनेक्शन है इनके साथ, क्या नाम है अपने जो बिजनेसमैन है जो अपने गांव में अपने, तो सबके सोर्सेज ऑफ फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो प्रोमोटर्स हैं या स्पॉन्सर्स हैं तो कहाँ से आ रहा है। तो ज्यादातर जो इंडिया का मीडिया है उसके जो सोर्सेज ऑफ फंडिंग है थोड़े से क्वेश्चनेबल्स है। रवीश कुमार, जिसको रवीश कुमार भी बोलते हैं, रवीश कुमार जो है उसका जो फैमिली है, उसके एक भैया है पॉलिटिक्स में है, तो इन लोगों के बारे में उसका नाम भी है रवीश कुमार पांडे। तो लोग अपने कास्ट एंगल को, रिलीजन एंगल को, और कभी कभी वायलेंस जल्दी बिकता है। अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो कोविड पूरे वर्ल्ड में आज इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, तो पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया कोविड के पीछे भागा हुआ। बट कहीं पे किसी ने कोई अच्छा काम कर दिया, कोई अच्छा रोड बन गया, वो अच्छा म्यूजियम बन गया, तो ज्यादातर लोग को उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता। तो मीडिया नेगेटिव स्टोरी, सीएनएन का पूरा करियर ही बना है। टेड टर्नर जो सीएनएन के फाउंडर थे, उन्होंने जहां भी एक्सीडेंट हुआ या कोई दुर्घटना हुई तो सीएनएन सबसे पहले पहुंच जाता था। तो मीडिया का वो जो है ना कि हम लोग को सेंसेशनल न्यूज के पीछे भागते हैं, और कभी कभी नहीं है सेंसेशनल तो बना देते हैं। कभी कभी मीडिया पैसा नहीं अतुल सर, हम क्या कहना चाह रहे थे, क्वेश्चन मेरा कुछ और था कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। एक दिन हम विशाल सर से चाहेंगे कि मतलब इस पे भी एक टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ये सब का कंसेप्ट मतलब
अदर लोग के माइंड में अलग अलग चीज चलता है कि लोग समझते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब हम रोड चलते किसी को गाली दे देंगे, फ्रीडम का मतलब हम किसी को मार सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि फ्रीडम का मतलब आप हिंदुस्तान में पाकिस्तान का झंडा लहराइएगा और हिंदुस्तान का झंडा जलाइएगा, इसको फ्रीडम हम कभी नहीं बोल सकते हैं कि क्या मेरे को आजादी, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्लियर होना चाहिए, डेमोक्रेसी का, फ्रीडम का, हमारे राइट क्या है। वो एक्चुअली अभिषेक, एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे ये में कानून में बहुत क्लियर कट बनाया हुआ है कि आप प्रेसिडेंट को और बहुत सारे पोजीशंस को गाली दे ही नहीं सकते हैं, और जिन्होंने दिया है तो उनको बाद में बहुत लोगों को कोर्ट के द्वारा उनको सजा भी मिला है। वही बात हम भी बोल रहे हैं कि बाद में वो किसी पार्टी के लीडर हो या मीडिया में हो, आज तक हो, या रजत शर्मा हो या अंजना ओम कश्यप हो, जब वो पॉलिटिकल प्रचार में जा रहे हैं तब आप उनको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जिस दिन वो शपथ ले ली है उस दिन से आपका भी, मेरा भी, सबका भी काम बनता है कि उस पद का सम्मान करना। नहीं, ठीक है, तो इसमें ये है कि एक न्यूज चैनल बोलता है कि ये इंसान अच्छा नहीं है, दूसरा न्यूज चैनल बोलता है ये इंसान अच्छा है। अब जनता तो कंफ्यूज हो गई ना कि इंसान अच्छा है कौन, और कहीं ना कहीं जनता को पता है दोनों स्पॉन्सर्ड न्यूज है, दोनों में से ऐसा कोई नहीं है कि जो पूरा है ना अपने सेल्फ डिपेंडेंट है या कुछ है या व्हाटएवर है। तो एक ने ऐसे बोल दिया, एक ने वैसे बोल दिया, और वो भी नहीं, जो बोला वो सही बोला, मिर्च मसाला लगा के बोला, या कितना मिर्च मसाला लगाया, जो हम लोग थोड़ा अनएथिकल एथिकल वाइज बात कर रहे थे। तो कोई भी न्यूज चैनल क्या फुल्ली एथिकल है? और नहीं है तो फिर उसको पढ़ना चाहिए क्या, उसको बायकॉट? अतुल सर, आप क्या बोलते हैं, बताइए, कोई न्यूज चैनल फुल्ली एथिकल है क्या आपके नजर में? तो मेरा ये कहना है कि न्यूज़पेपर हो या चैनल हो, इंटेग्रिटी एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई भी न्यूज आप दिखा रहे हैं, आप व्यूज आप दे सकते हैं कि मोदी का इकोनॉमिक पॉलिसी बेकार है, मोदी के कहते हैं इंडिया को बर्बाद कर दिया, बैंकरप्ट कर दिया, दैट इज परफेक्टली फेयर। बट आप पर्सनल अटैक किसी भी पर्सन ऑफ पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन पे है, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, तो उस पर आप पर्सनल नेगेटिव अटैक, उसकी बाउंड्रीज है, जो अभिषेक का जो बात है, बाउंड्रीज, उस बाउंड्री को आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, और किसी, लेकिन वो भी इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, बाकी दुनिया में नहीं। यूएस की खास बात है जो मुझे अच्छी लगती है कि प्रेसिडेंट को सुबह शाम दिन रात हम गाली दे सकते हैं, बहुत अच्छे से गाली दे सकते हैं, और कोर्ट भी मुझे सुप्रीम कोर्ट भी मुझे डिफेंड करेगा, यहाँ पे कोर्ट डिफेंड करेगा। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ के लिए, यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इंडिया के लिए हुआ करता था, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ है मेरे ख्याल से। मैं थोड़ा सा अगेंस्ट भी लग रहा कि जो रूलिंग पार्टी में जो भी हो, मोदी हो चाहे राजीव इंदिरा गांधी हो, उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को थोड़ा बहुत हमेशा कटेल किया है। और जो भी लोग पॉलिटिक्स में होते हैं, पावर में होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कंट्रोल करने का, मीडिया को कंट्रोल करने का, लेकिन उसका बैकअप प्लान ये है कि इंडिपेंडेंट मीडिया एक होना चाहिए, जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, उसका रोल होना चाहिए कि हर पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने के लिए एक इंडिपेंडेंट मीडिया होना चाहिए, जिसको कि गवर्नमेंट के फंडिंग पे डिपेंड नहीं करना पड़े। जैसे यूएस में नेशनल पब्लिक रेडियो है, या इंडिया में मतलब इंडिया में भी मैं भूल रहा हूँ, बहुत सारे चैनल है कि बहुत से लोग अपना, आजकल तो यूट्यूब आ गया ना, तो एनीबडी कैन क्रिएट देयर ओन चैनल। बहुत सारे आजकल रेडियो चैनल्स भी फ्री के लोग बना देते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने पॉलिटिशियन से ये पावर ले लिया है कि किसी को आप राइट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आप छीन सकते हो। अगर आपको कंट्रोल करना, ठीक है, आप अपना दूरदर्शन कंट्रोल कर सकते हैं, आप चैनल को कंट्रोल कर सकते हैं अपने स्पॉन्सरशिप रोककर, लेकिन इंटरनेट आपके हाथ में नहीं है। एंड द वर्ल्ड जिसको बोलना है आप नहीं सप्रेस करोगे, बट कोई और वेबसाइट ब्लॉग छाप देगा आपके बारे में कि ये करप्शन है, ये गलत है। और विकीलीक्स ने बहुत अच्छा एग्जांपल सेट किया कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोगों को उसने एक्सपोज कर दिया कि कितना सभी लोग मिले जुले हुए थे। राडिया केस में वो तो पता चला कि बहुत सारे हर पार्टी के लोग पैसे में मिले जुले हुए थे। तो चोरी तो सर्वव्यापी है, हर जगह भी पीपल मतलब कि करप्ट पीपल है। कम और ज्यादा का बात है, और आप किस चोर को हम चूज करेंगे, ये चोर थोड़ा कम खतरनाक है।
या काम भी करता है 100 in 100 rupees, 90 rupees work, 10 rupees for the election funding. Some other politicians की 99 rupees for चोरी and 1 rupee for ये. तो अलग अलग एक परसेंटेज चेंज होते हैं, लेकिन करप्शन इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड मीडिया बहुत ही करप्ट है, मेन स्ट्रीम मीडिया. बट फॉर दैट नाउ वी हैव विकिपीडिया एंड वी हैव गूगल एंड वी हैव ऑल दोस other alternate channels. Yes, sir. मैं विशाल बस आपको करेक्ट करना चाहूंगा. आपने ये बोला कि क्या न्यूज मीडिया एथिकल है, तो मैं बता देता हूँ, दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो अनएथिकल है. एंड न्यूज इज अ बिजनेस, सो इट इज ऑब्वियसली अनएथिकल. ठीक. तो एक चीज ये है कि जब हम छोटे बच्चे थे तो आधे घंटे का 1 घंटे का डीडी न्यूज आया करता था. ठीक है, 20-25 साल पहले. कुछ धीरे धीरे चैनल पे चैनल खुलते चले गए और वो 30 मिनट का 24 घंटा हो गया है. और एक चैनल नहीं, 10 चैनल खुल गया. सब भेड़चाल में है, एज एन कॉम्पिटिटर है एक दूसरे के. सब लोग चाह रहे हैं कि ऑडियंस मिल जाए. एक कुछ हिंदी चैनल है, कुछ इंग्लिश चैनल है. सब लोग अपना अपना टीआरपी बढ़ाने में लगे हुए हैं. तो आई एग्री कि ये बिजनेस है और एथिक्स है. जैसा भी बात हुआ कि फुल्ली 100% होना is next to impossible. I mean, राम रावण वाला चीज है. There is always a gray area. The question is कि ये इतने सारे कंपटीशन में अब ये हो गया है कि कोई कहीं भी विभीषण बन जा रहा है, किसी का कुछ भी चुगली कर दे रहा है. एंकर्स ऐसे पे इधर से उधर भाग जा रहे हैं और लॉयल्टी चेंज हो रहा है उनका, जस्ट लाइक पार्टी चेंजिंग एंड थिंग्स लाइक. तो अब जो एंकर्स ऐसे ऐसे चेंज कर ले रहे हैं और फिर मतलब जो भी बोलते हैं, फिर उनको कहीं ना कहीं एज एन पब्लिक जो देखती है, वो आई डोंट नो चैनल को ज्यादा देखती है या उस एंकर को ज्यादा देखती है. आई थिंक इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बट आई फील कि पर्सनल लेवल पे जिनका जो भी ब्रांड है वो ज्यादा मैटर करता है कंपेयर टू द न्यूज चैनल. तो कहीं ना कहीं वो किसी भी चैनल में जाए उनको जनता फॉलो करेगी. इट्स लाइक एंकर्स आर काइंड ऑफ सूडो सेलिब्रिटी. तो अब क्या है कि नाउ सिंस इट्स स्पॉन्सर्ड एंड थिंग्स, दे नीड दैट मेनी ऑडियंस. अब उस ऑडियंस के लिए जो न्यूज दिखा रहे हैं, तो सो वी आर नॉट सेइंग कि जो न्यूज दिखा रहे हैं वो सही नहीं दिखा रहे, बट it's probably skewed towards like cherry picking kind of thing. ठीक है, कि अब 100 चीज है, now you are every channel will pick out of that 110 things 5 things जो उनके सुटेबल है. तो जैसा कि हमने बात किया कि लोगों ने, लीडर्स ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने सही चीजें भी की, गलत चीजें भी की, दोनों सच है. ठीक है, बट देन सम न्यूज आर पिकिंग सही चीज, सम न्यूज आर पिकिंग रॉन्ग थिंग. तो is it really wrong to pick, I mean cherry pick facts as such? सारे facts हैं, जैसे सारे 100 के 100 facts सही हैं, बट मैं अगर ये बोलूं कि मेरा तारीफ नहीं कर रहे हो, मेरा सिर्फ बुराई कर रहे हो, तो क्या मुझे ये बोलना चाहिए? I mean even in company scenario, let's say, I mean should we be complaining that since you are not praising me, you don't have any right to criticize me, or since you are criticizing me, you don't have any right to praise me? What do you think, Nandan? Yes, sir. Please. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yeah, I want to say here I follow a uh, anchor who spells out always this words when we are into a media platform has to be an opponent to the government. A media has to be always criticize the government. If at all the government is doing all those good things, there are so many of the bad things. A media has to be looking to after a the media has to be into an opponent party. I have grabbed that words it is a good words. The media has to be in such a way, it should not propaganda government, it should criticize the government. Then only the government can do so many things and can rectify all those things. The media has to be in the
public scenario, Opposition, not in the corner. Yes, party. opposition. Yes, the media has to be an opposition only. Yeah. Okay, interesting point put by Nandan that media should always be in the opposition, not in the praise side. Praise करने के लिए तो बहुत लोग हैं, and you know, like political parties may have their PR to do all the praising. So probably media should more concentrate on the criticism that okay, this decision has whatever good things. I'm not sure, but certainly it has these bad things. So let's hear from people what they think. अच्छा Abhishek want to say? हाँ Abhishek बताओ. Yes. ये हम नंदन के बात पे एक चीज कहना चाहेंगे कि मान लीजिए कि एज फॉर एग्जांपल आपका स्टार्टअप बहुत ही अच्छा चल रहा है, आप कुछ देर के लिए ये सोचिए कि कोई भी पार्टी एक स्टार्टअप है, बीजेपी कांग्रेस जो भी है, और वो बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके बाद उसका पब्लिक रिव्यू क्या है, उसके लिए वो न्यूज चैनल खोलेगा। अब उसमें आप बोले कि मीडिया को हमेशा ऑपोजिशन का रोल प्ले करना चाहिए, हमेशा वो निगेटिव चीज सोचेगा, तो इसका बैड इफेक्ट भी बहुत बड़ा होगा। सोचेगा कि अरे हम हर काम अच्छा कर रहे हैं फिर भी मेरा लोग वो बुरा ही कर रहे हैं, तो उससे अच्छा हम अच्छा काम क्यों करेंगे, सबके तरह हम घोटाला ही करेंगे। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा बैड इफेक्ट भी हो सकता है। और जहां तक विशाल सर का क्वेश्चन था कि लोग न्यूज चैनल को देखते हैं या एंकर को देखते हैं, मेरे ख्याल से जो कंटिन्यूअस न्यूज देखते हैं वो एंकर को ज्यादा देखते हैं। ठीक है, तो अच्छा है। और आप बता रहे हैं कि किस चैनल को देखें किसको नहीं देखें, भाई आपके हाथ में रिमोट रहता है, आपको आज तक ये बुरा लग रहा है, इंडिया टीवी पे जाइए, एनडीटीवी पे जाइए, कौन रोका है? मीडिया वाला हम लोग को बुलाने नहीं जाता है, यहाँ तक कि हम लोग चाहते हैं लोग कि हम लोग का इमेज मीडिया में आए, भले कोई कह पाता है कोई नहीं कह पाता है, पर हर किसी का ड्रीम रहता है कि वो मीडिया कवरेज बने और पब्लिक फिगर में जाए। किसको अच्छा नहीं लगेगा? जो आदमी एज फॉर एग्जांपल आज रिपब्लिक टीवी का वो बुराई कर रहा है, कल अर्नब गोस्वामी का ये मैसेज आ जाए कि भाई हम तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि ऐसे कोई ऐसा आदमी इसमें नहीं होगा जो नहीं जाएगा उसको इंटरव्यू देने, हर कोई जाएगा, सब उसका वो बुराई भूल जाएगा कि वो क्या कहता है। तो अभिषेक, I will add something. So let's say Arnab Goswami, if somebody calls someone, and we can take comments from everyone. Let's say he calls someone and he praises that person on the news, तो जाएंगे लोग, ये एग्री है। बट अगर मुझे पहले से पता है या there is maybe some source कि I know कि मैं जाऊंगा तो मैं टीवी में आऊंगा और मेरा सिर्फ धुलाई होने वाला है वहां पे, तो मैं नहीं जाऊंगा शायद। So let's hear from other people. Muskan, what do you think? I mean, if you already know that if you go to a news channel for a let's say bashing, would you go for it just to show up on the news? Are you there, Muskan? Yes, sir. Yes. What do you So think? can you please repeat the question? Yeah, the question is, let's say a news channel calls you and you know that the news channel is just going to ruin your image. And that's why they're calling you, so that they can publicly ruin your image by asking tough questions, controversial questions, etc. Would you go for it? Or when you are pretty much sure they are just going to talk about your good things, then you will go? What do you think? Obviously, when I'm sure that they are going to talk about only the good things or the good side, only then I will go maybe. Obviously, for the bad things, not just to come on the TV, right? No. Yeah, क्या फर्क पड़ता है, अच्छा हो गलत हो। नहीं, I think वो वैसी इमेज खराब हो जाएगी। अच्छी इमेज के लिए you will go, right? I mean, फ्री में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, otherwise तो पैसे देने होते हैं। Yes, sorry, you have a comment. मुझे याद है बहुत पहले कौन एंकर था मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ही इंटरव्यूड सनी लियोनी और उसके बारे में बहुत नेगेटिव चीजें बोला था, उसको पोक किया कि क्यों तुम पॉर्न में थी और ये सब वो सब जो भी गलत काम उसने किए उसके लिए बहुत पोक कर रहा था, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो रोडीज में आके और ये स्प्लिट्सविला में आके शी चेंज्ड हर इमेज एंड शी स्टॉप्ड डूइंग दोस थिंग्स, शी गॉट मैरिड आल्सो, वो सब चीज उसने किया, लेकिन तब भी उस न्यूज में बहुत ज्यादा उस पर क्वेश्चन किया गया था। तो
आई डोंट थिंक सनी लियोनी को ये लग रहा था कि उसकी तारीफ की जाएगी वहां पे और बोला जाएगा आपने बहुत ग्रेट काम किया है, पर वो फिर भी न्यूज में आई. So she knew ki what was coming on her way, but she came there. Maybe it was a publicity stunt to keep in the media. So negative impact भी जरूरी है. अब आप पद्मावती मूवी देख लो, पद्मावत में सब लोगों ने, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, सब लोगों ने इंटरव्यूज दिए होंगे कि हमारे फिल्म को रोका जा रहा है, ओपोज किया जा रहा है. उससे फिल्म ही 300-500 करोड़ जितना भी कमाया. तो आई थिंक नेगेटिव पब्लिसिटी also works sometimes. Yeah, so I agree. Yeah, I mean, debatable topic. Especially in entertainment industry. हाँ, मेरे को कोई इंटरव्यू लेगा और मेरे exactly. Common man में नहीं होगा, I guess. हाँ. Right. So I think people who know this game would go for this game. People who don't know this game would definitely not plunge into this probably. Yeah. So Karthik, you have any comment on this? I mean, if you are sure that media will praise you, then only will go for interview. और यू आर ओके टू गो पॉइंट ब्लैंक, जो होगा देखा जाएगा, क्या फर्क पड़ता है. म्यूट हो गया. Yeah, I'm sorry, can you repeat the question? Yeah, the question is, let's say media called you, and you don't know, I mean, what they will do with you. So would you be more comfortable going if you knew what they will ask you? I mean, are they ruining your image or are they going to uplift your image? Or at least stay neutral, then only you will go. और अगर आपको पता चल गया कि आपका इमेज खराब कर देंगे शायद, तो still you will go. So देखिए, it pretty much depends. अब तो जैसा मैंने पहले बोला, मैं न्यूज चैनल्स ज्यादा नहीं, बट बहुत रिसेंटली थोड़ा बहुत देखना शुरू किया. So it pretty much depends upon the anchor, I would say. अर्नब गोस्वामी है तो I remember ये तन्मय का उसने कुछ एक वीडियो निकाला था which had सचिन तेंदुलकर and आशा भोसले, if I'm not wrong. तो मजाक उड़ाया था. तो अर्नब ने एक इंटरव्यू लिया था बहुत सारे कॉमेडियंस का. तो उसमें there was this fellow सौरभ पंत. तो सौरभ पंत ने बाद में एक वीडियो निकाला था, he was making fun of अर्नब गोस्वामी, जिसमें उसने बेसिकली ये बताया कि he was in total time he was there for the interview for about 30 odd minutes and 20 मिनट तक उसको कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला. So if there's an anchor like अर्नब गोस्वामी and he is about to criticize me, so that doesn't make sense कि मैं वहां जाकर के बस अपना मुंह बंद रखूंगा and कोई मेरी बेइज्जती करेगा. On the other hand, of course, it's someone like, I would say, Rajat Sharma, who's doing that interview, giving me a proper channel to justify myself, then why not? I mean, basically Rajat Sharma तो करते यही है. उनका जो आपकी अदालत आता है, he's putting some allegations about you, right? But आपको in a fun way, but ठीक है, कभी-कभी थोड़े serious होते हैं और whatever it is, but he's giving you a platform to justify those things. So it depends. It totally depends. अर्नब गोस्वामी तो I mean, it doesn't make sense. वो तो बस ऐसा है कि आप अपना ही बोलता रहेगा वहाँ पे, you are just sitting there ideally. So it pretty much depends upon that. But yeah, I would never mind going out and जब मुझको पता है कि what is about to come or what is not to be there. But हाँ, I don't mind going ऐसे. So एक और question है, not pointing to anyone. Some of these news channel call people just to show people, जैसे कि मैं अभी जीडी में बुला लूँ सबको और मैं ही बोलता रहूँ पूरे टाइम, है ना, चिल्ला के बोलो हाँ ये है वो है. सौरभ ने एक लाइन बोला, उसका 2 वर्ड बाद ही काट दो, म्यूट कर दो उसको, चुप रहो, मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा. आपके मेरे हिसाब से you should go to jail आज के आज. नेशन वांट्स टू नो, ये वो जो भी है. ये जो एक पैटर्न बन गया है, is it really liked by people, that's why this pattern is, or is it the inherent nature? मतलब ऐसा कोई ऐसा होता ही है कि तो मतलब बोलना ही नहीं देना है इसको, या वो टीआरपी के लिए कर रहे हैं, या मतलब क्या है एग्जैक्टली? मुझे थोड़ा सा let me hear the views. सेजल, yes, what's your view? क्यों ऐसा करते हैं लोग आके, मतलब चिल्ला के क्या मिलता है उनको? सर ये तो नहीं पता उन्हें क्या मिलता है, बट मोस्टली वो अपना प्रेजेंस शो करने बताते हैं. मतलब मैं चिल्लाऊंगा तो मुझे अटेंशन मिलेगी. दोस पीपल आर पर्टिकुलरली अटेंशन सीकर, बट इससे एक तो पार्टिसिपेंट्स इरिटेट होते हैं. लाइक अगर आप ये जीडी में स्टार्ट हो जाएगा तो पार्टिसिपेशन जो है वो कम हो जाएगा. और इन न्यूज चैनल्स तो कभी कभी ऑडियंस प्रेफर करती है अगर जो पर्सन ज्यादा बोल रहा है उसका पॉइंट अच्छा है, अदरवाइज ऑडियंस को भी वो पसंद नहीं आता है. सो इट्स नॉट अ गुड थिंग.
अभिषेक, यस, अभिषेक जनता है। यस सर। हाँ बोलो। यस, आप बोल रहे हैं कि उसे क्या मिलता है, वो तो एक मतलब उस सोच के आते हैं कि किसको टारगेट करना है आज, ठीक है, तो उनका फिक्स रहता है इसका, क्योंकि हम न्यूज चैनल देखते रहते हैं तो वो बेस्ट एग्जाम्पल बताते हैं। पालघर में एक घटना हुआ था जो साधु वाला को लेकर मुंबई में, ठीक है, उसको अर्नब गोस्वामी ये सब आगे उठाए थे लोग केस, ठीक है, तो वो बस सोनिया गांधी का ओरिजिनल नाम जो है एंटोनियो माइनियो करके जो भी है, वो बस कह दिया था तो अर्नब गोस्वामी के ऊपर केस हो गया था मुंबई का ये कोर्ट में। उसके बाद उसको अपना जाकर 8, 10, 12 घंटा सफाई भी देना पड़ा था। तो जब वो झेल रहा है तो उसके पास तो सबसे बड़ा हथियार है मीडिया चैनल का। उसके बाद तो उस पार्टी के प्रवक्ता को बुलाकर नंगा करेगा ही, उसको तो नहीं बोलने देगा, उसको तो म्यूट करके बेइज्जती करेगा। उस जगह पर हम भी रहते, आप भी रहते, भले अभी बोलना आसान है, हम भी लोग वही करते हैं। इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा कोई करे तो उसको बुलाकर, जिसको बोलते नहीं बीच बाजार में नंगा करना, वो तो करेंगे लोग। ठीक है, यस सौरभ प्लीज। मैं भूल गया, बट मैं हल्ला करने वाला चीज, कोशिश करता हूँ। आपने ये पूछा था कि क्या ये जानबूझ के कर रहे हैं या उस तरीके से, तो मैं इसका जवाब देता हूँ। आज कपिल शर्मा शो जो आता है, उसके होस्ट कपिल शर्मा इसीलिए बिकॉज ऑडियंस वांट्स हिम। अदरवाइज बहुत सारे कॉमेडी शोज सालों से चल रहे हैं। लाफ्टर चैलेंज था जिसमें 50 हर हफ्ते ही नए कॉमेडियंस बदलते थे। उसके बाद कॉमेडी सर्कस आया, उसमें भी 50 कॉमेडियन, बहुत सारे सक्सेसफुल सीरीज हुए, 50 कॉमेडियंस बदलते रहे। लेकिन कपिल शर्मा वाज अ मतलब एक पाथ ब्रेकिंग थिंग जो हुआ, एंड इट इज लव्ड बाय एवरीवन। सो अर्नब गोस्वामी फेक नहीं कर रहा है, लेकिन उसका स्टाइल ऑफ इंटरव्यूइंग, जिस तरीके से वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, जिस तरीके से उनका पिच तेज होता है, जिस तरीके से वो दूसरे को बोलना नहीं देते हैं, समवेयर अ सर्टेन सेक्शन ऑफ ऑडियंस लाइक्स इट। दैट इज व्हाई ही इज देयर। अगर वो चहीता नहीं होता तो आज रिपब्लिक चैनल ही नहीं होता। रिपब्लिक अर्नब ने बनाया है, रिपब्लिक को थोड़ी कोई जानता है, वो तो हट के उसने रिपब्लिक दिया। तो अगर अर्नब अच्छा नहीं होता तो वो दूसरे न्यूज चैनल में ही काम कर रहा होता, या उसका नई टीआरपी, वो न्यूज एट 9 देता था। जो 9 PM वाले जो न्यूज होते हैं वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट टीआरपी वाले होते हैं, और सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट वहां पे आके डिबेट करते हैं। तो द फैक्ट कि ही वाज डूइंग दैट 9 PM शो मींस ही वाज द बेस्ट इन द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन ही स्टार्टेड हिज ओन। तो ये तो ऑडियंस की डिमांड है, तो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। आप फेक कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ऑडियंस की डिमांड है, आपको पैसा कमाना है तो ये करना पड़ेगा। और एक चीज इसमें हम ऐड करना चाहेंगे कि जो अर्नब का शो आता है 7:30 के आसपास, वो हिंदुस्तान में जो भी डिबेट होता है नंबर 1 शो है। इनफैक्ट जो आज तक का आता है उसको भी वो पीछे छोड़ चुका है, तो उसको पता है कि ऑडियंस क्या देखना चाहता है। ऐसे ही तो नंबर 1 हो गया। और इसी पे ऐड करना चाहूंगा कि इंडिया इज वेरी लाउड, काफी हम लोग लाउड है, बहुत सबको अपना अपना बात आवाज रखना है, और 1.4 बिलियन के देश में आपको अपनी आवाज सुनानी है तो आपको चिल्ला के बोलना पड़ेगा। तो अर्नब गोस्वामी ने उसी चीज को, क्योंकि वो क्या कहते हैं, मूड ऑफ द नेशन को वो रेजोनेट कर रहा है कि सारे लोग अपनी बात बोलना चाहते हैं, और जो सोफिस्टिकेटेड स्टीफेनियन और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले इंग्लिश वाले जो चैनल्स थे, मैं पुनः रॉय और राजदीप सरदेसाई, उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि अंग्रेजी मीडियम थे ये लोग, बट आम जनता से रेजोनेट नहीं करते थे, वो लोग कटे थे। इवन तो रॉय इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश ही बोलता है, बट फिर भी वो मासेस के साथ जो है ना, जिनके द वॉइस ऑफ द अनहर्ड, उनके साथ रेजोनेट कर रहा है। लोगों में गुस्सा है, तो अर्नब रॉय के गुस्सा में उनको अपना गुस्सा दिखता है। सेम काम रजत शर्मा ने भी काफी अच्छे से कैप्चर किया है। और जो सोफिस्टिकेटेड स्टीफेनियन इंग्लिश वाले जो लोग थे, उनका देखिए तो टीआरपी नहीं, उनका
फाइनेंशियल बिजनेस डूब चुका है, बैठ चुका है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है चलाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं मिल रही है, और प्लस ओवरऑल उनके ऑडियंस उनको भाग छोड़ के भाग रही है। मुझे न्यूज ही देखना है इंग्लिश मीडियम वाला, तो मैं BBC देख लूंगा, मैं बहुत सारे चैनल्स हैं अंग्रेजी मीडियम के चैनल देख लूंगा। मुझे प्रणय रॉय और इनकी अंग्रेजी, सॉरी इनकी अंग्रेजी मुझे नहीं सुननी है, मुझे सुनना है तो अपने लोगों के भाषा में, अपने लोगों के स्टाइल में। तो अर्नब ने लोगों के मूड को पकड़ा, लोगों के गुस्से को शो किया, और उसका ये जो चैनल है कि लोगों को चुप कराता है और कराता है, वो टीवी पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि लोग इतना चैनल पे आपने देखते होंगे कि कोई लोग आते हैं वो बोलते जाते सुनते ही नहीं है। तो उनको चुप कराने के लिए भी एक अर्नब गोस्वामी से लाउड आदमी चाहिए कि वो चुप करा के लगे, मेरी बात आप सुनो, उसके बाद आपको मौका देने, तो म्यूट कर देता है। एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट कि टीवी का एंकर वो है, तो एंकर को मैनेज कर दीजिए ना आप। इसी ग्रुप डिस्कशन में आज अतुल कुमार बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, लेट्स से बहुत लाउड है भी, तो विशाल कुमार का ड्यूटी बनता है और उनके पावर है कि किसको वो म्यूट कर दे, चुप करा दे कि नहीं आप चुप हो जाइए। तो अर्नब गोस्वामी वही करता है, चुप करा देता है लोगों को कि आप बात दूसरे को ही बोलने दीजिए। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला। आई थिंक हिज द एंकर्स आर रिजोनेटिंग विद द मूड ऑफ द पब्लिक, कि पब्लिक को भी चाहिए कि थोड़ा हल्ला गुल्ला करे, मतलब चिल्लाने का कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं आई गेस। तो यू नो दे लाइक, यू नो वो सिनेमा वाला चीज है, एक विलेन है कोई, या एक विलेन ने बहुत सारा खराब काम को दिखाया, फिर जब हीरो उसको पीटता है बहुत, तो जनता को अच्छा लगता है देखने में कि हाँ ये ऐसा विलेन को तो के साथ ऐसे ही करना चाहिए। तो ये भी होता है आई गेस, डिबेट में होता है, चिल्ला के होता है, ऑनलाइन मोड में होता है, तो जनता फील यू नो अपीज्ड काइंड ऑफ कि हाँ चलो अच्छा है, वैसे ही बोलना चाहिए था, हमको तो मौका मिला नहीं, जिसको मिला उसको बोला। बट मुझे एक चीज आई डोंट नो कि क्या, मतलब ये गट फीलिंग है, समटाइम्स आई थिंक कि जनता इस तरह से धुलने के लिए क्यों आएगा, कोई बार बार क्यों आएगा। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये पूरा स्टेज तो नहीं है कहीं, कि मतलब उनको भी बोला जाता है कि आप भी आओ, मैं थोड़ा चिल्लाऊंगा आप पे, और आप भी आ जाना, मैं आप पे भी थोड़ा चिल्लाऊंगा, और ये चिल्लाने के बदले है ना आपका थोड़ा सा आई डोंट नो क्या उनको क्या फेवर करते हैं क्या नहीं, इसका रीजन क्या हम बतलाते हैं। जैसे आपका पॉलिटिकल पार्टी है या किसी का भी है, उसका प्रवक्ता होता है। अगर उसको न्यूज चैनल वाले इनवाइट करते हैं तो किसी ना किसी प्रवक्ता को भेजना रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब हम भी जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी से, तो हमको पता है। अगर वो नहीं भेजता है, ऐसे कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी डिक्लेयर कर दिया था कि उसका प्रवक्ता किसी भी न्यूज चैनल पे नहीं जाएगा। अब मीडिया वाले उसको इशू बनाते थे कि यार कांग्रेस का कोई प्रवक्ता ही नहीं आता है, यानी उसको जवाब देने का ताकत नहीं है। तो इस लिहाज से भी वो अपना प्रवक्ता भेजते हैं, चाहे वो बकलोल आदमी को ही क्यों ना बैठा दे, दो चार पांच वो गाली सुने और मीडिया में स्टेटस लगा दे कि हम मीडिया में आए हुए हैं। और आई थिंक ये लोग को ये भी सिखाया जाता है कि डॉज कैसे करना है क्वेश्चन। आपको कुछ पूछा जाए, आप जवाब कुछ और दे दीजिए। बेस्ट है, आप लोग संबित पात्रा को सुनते हैं लोग नहीं, पता नहीं आप लोग सुनते हैं लोग नहीं, वो मस्त जवाब दे देता है, उसका तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली उनको भेजा जाता है अपना पॉइंट रखने, ना कि आंसर देने। तूने जो ऑडियंस को बोलना है उस पार्टी को, वो बोल के आ जाते हैं, अनाउंसमेंट करके आ जाते हैं। 100% आप करेक्ट बोले, 100 वो डिबेट करने थोड़ी आते हैं। अर्नब आधा घंटा बोलता रहे, वो 5 मिनट में अपना पॉइंट रख देंगे, दैट्स इनफ। एटलीस्ट वो पॉइंट रखेंगे, उसके बाद हो सकता है जवाब भी दे, बट वो पॉइंट रखेंगे अपना कि हाँ ये चीज बोल के आना, हार नहीं मानना, हाथ मत जोड़ लेना, क्योंकि वो होता है ना कैसे एक्सीडेंट जैसा चीज है कि कभी कुछ जो स्पोक्स पर्सन है, संबित पात्रा इंक्लूडेड, और एक और मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, वो एक और बीजेपी साइड से आते हैं, तो इतने नॉलेजेबल हैं कि संस्कृत का भी कोटेशन कर देंगे, आपका मतलब कि वेद, रामायण, महाभारत, कुरान, सुधांशु त्रिवेदी का आप बात कर रहे हैं क्या? हाँ, सुधांशु त्रिवेदी। अब सुधांशु त्रिवेदी के साथ डिबेट में वो चिल्लाते नहीं है, लेकिन उनके साथ
कोई टिक ही नहीं पाता है, क्योंकि सामने वाले से प्योरली आप ही की किताब, आप ही के लीडर, उन्हीं का एग्जाम्पल कोट कर देंगे और सामने वाले को एकदम कॉर्नर कर देते हैं। तो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों के सामने टिक नहीं पाते हैं। तो चैलेंज क्या हो जाता है कांग्रेस और बहुत सारी पार्टीज के पास, कि उनके पास अच्छे एक स्पोक्सपर्सन मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि फ्लाइट ऑफ टैलेंट होता है। जो सक्सेसफुल कंपनी है, सक्सेसफुल पार्टी है, तो सारे अच्छे टैलेंट भी धीरे धीरे चला जाता है। तो ये एक चैलेंज आ गया है कुछ कुछ ऑपोजिशन पार्टीज के पास, कि उनको अच्छा स्पोक्सपर्सन मिल नहीं पाते, क्योंकि उनके पास अच्छे टैलेंट बचे नहीं। अतुल सर हैं इसका सोल्यूशन। वो सारे पार्टी अतुल सर को ले ले और अतुल सर आप चले जाओ गोस्वामी के साथ डिबेट करने। सारे पार्टी नहीं, अतुल सर जाना होगा तो बीजेपी, नहीं तो मेरा पार्टी हम बनाने। मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हूँ ना, मैं तो आरएसएस का हूँ। यस, हम भी आरएसएस के ही हैं। चलो एटलीस्ट ये मीडिया का इफेक्ट है, मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ। आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बस क्लियर कर दे। मतलब मैं नॉन पॉलिटिकल बंदा हूँ, ये बोलना चाहता हूँ। मैं I have zero opinion, दुनिया का नागरिक। नहीं, मैं अपने ड्यूटीज पूरे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता है। मैं नॉन पॉलिटिकल। सही बात बोले कि हिंदुस्तान में कोई बोल दे, एक होता नहीं रग रग में दौड़े राजनीति, तो हिंदुस्तान का एक एक आदमी के अंदर राजनीति दौड़ता है। नहीं, जो न्यूज नहीं देखता है ना दिन रात, उसके अंदर मेरा इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली। मतलब अगर टीवी खोलूं और कांग्रेस बीजेपी लड़ रहे हैं तो मैं क्रिकेट देख लूंगा। अरे तब आप आम आदमी पार्टी को दे दीजिए, कांग्रेस बीजेपी लड़ रहे हैं तो क्या दिया था आम आदमी को दिया था, और पिछले साल मोदी को दे दिया था। मतलब केजरीवाल को वर्ल्ड फेमस बनाने में थोड़ा बहुत मेरा रोल था। मैं भी आम आदमी पार्टी ने जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था, केजरीवाल के बोलने पे उसके गोसाम्बी घर पे मिले थे और उसके जो टीम के साथ, तो उन्होंने बोला था कि अगर आप न्यूयॉर्क में छोटा सा भी कर दीजिएगा हमारे, तो काफी हमने उनको मीडिया कवरेज भी दिलाया था, आया था। उसके बाद बहुत फेमस हो गए। तब रियलाइज हुआ कि आप ही, जब तक आप राजनीति में जाने के पहले आइडियलिस्ट होते हो और एक बार आपको पावर का जो खून का जो चस्का लग जाता है ना, वो तो उसके बाद नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी जब से कुमार विश्वास को हटा दिया ना, तब से मतलब आम आदमी पार्टी वो रह नहीं गया। तो वो आम आदमी पार्टी नहीं है ना, वो अरविंदन पार्टी है। यस चलिए ठीक है, उस पर भी कभी करते हैं डिबेट बात, ठीक है, एनी वीकेंड में पॉलिटिकल डिबेट एक करिए ना आप भी। इस साल से हम 3 बजे रात तक भी जग जाएंगे। मुझे डर लगता है कि लोग एक दूसरे का मर्डर न कर दे ऑनलाइन। अरे कोई नहीं करेगा जी, फिर इसी में से कोई विकास दुबे पैदा हो जाएगा, टेंशन का है। मेरा ये जीडी ना प्राइम टाइम में बदल जाएगा, फिर 10 बजे प्राइम टाइम। नहीं, सेजल जान है ना, तो विशाल को फंडिंग मिल जाएगी। नहीं विशाल, मेरा कहना है कि सेजल जान को मॉडरेटर बना दीजिए, तो नॉन वायलेंट है तो मैनेज कर लेगी। चलिए ठीक है, चलिए, गुड नाइट फॉर टुडे।